صدر کا الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے گریز۔ الیکشن کمیشن کو 6 نومبر کو پولنگ کرانے کی تجویز دے دی۔ عارف علوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھا کہ آئین کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ 90 روز کے اندر مقرر کرے۔ وفاق کو مضبوط بنانے، صوبوں کے درمیان اتحاد اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے۔ الیکشن کمیشن آزادانہ منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہی دن انتخابات کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ الیکشن کمیشن نے صدر کے خط پر مشاورت کے لیے کل اہم اجلاس بلا لیا۔ عام انتخابات 6 نومبر کو ہوں گے۔ صدر مملکت نے تاریخ کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا مشورہ بھی دے دیا۔ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا گیا کہ صدر مملکت نے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ آئین کے آرٹیکل 48/5 کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے۔ آئینی ذمہ داری پورا کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ وضع کیا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ آئین کی اسکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ صدر نے خط میں کہا کہ اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے اور آئین کے آرٹیکل 51/5 اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہے۔ وفاق کو مضبوط بنانے، صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے۔ خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے طے شدہ تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے۔ الیکشن کمیشن صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے اور ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ دوسری جانب صدر مملکت کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کی تجویز پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں صدر کے خط کا جائزہ لیا جائے گا۔ ماہر قانون عرفان قادر کہتے ہیں کہ خط اس بات کا اعتراف ہے کہ تاریخ دینے کا اختیار صدر کا نہیں ہے۔ صدر نے الیکشن کمیشن کا اختیار تسلیم کر لیا۔ قانونی ماہر حافظ احسان نے کہا کہ صدر کو معلوم تھا پھر بھی معاملات پیچیدہ کرنے کے لیے الیکشن کی تاریخ دی۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق کام کر رہا ہے۔ صدر مملکت کا خط غلط ہے۔ قانونی ماہرین نے صدر مملکت عارف علوی کی ڈائریکشن کو قانون کے خلاف قرار دے دیا۔ ماہر قانون عرفان قادر نے صدر کو مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں صدر مملکت کا رول ہی نہیں کہ الیکشن کی تاریخ دیں، انہیں چاہیے معاملات الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیں۔ صدر مملکت کو کوئی اس طرح کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان معاملات میں تجاویز دینی شروع کر دیں، اور وہ بھی بغیر تحقیق کے۔ اور صدر پاکستان کا یہ رول ہی نہیں ہے۔ صدر پاکستان کا منصب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور وہ سیریمونیل ہے۔ وہ خام خواہ چند قانونی مشیران کے کہنے پہ یہ چٹھیاں لکھ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں الیکشن کمیشن پہ چھوڑیں، حکومت وقت پہ چھوڑیں، باقی اسٹیک ہولڈرز پہ چھوڑیں۔ یہ خام خواہ بیچ میں آ گئے ہیں، ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس لیے صدر مملکت کو صدر مملکت بن کے رہنا چاہیے۔ قانونی ماہر حافظ احسان نے GNN سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو ووٹرز کو نہیں پتا ہوگا کہ ووٹ کہاں ڈالنا ہے۔ صدر کو معلوم تھا پھر بھی معاملات پیچیدہ کرنے کے لیے الیکشن کی تاریخ تھی۔ جتنی دیر تک آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے حلقے کتنے ہیں، آپ کے ووٹرز کتنے ہیں، کس نے کہاں ووٹ ڈالنا ہے، کس کینڈیڈیٹ نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں کہ 90 دن کے اندر آپ شیڈول کریں کہ کسی ملک کے اندر جس کے اندر کانسٹیٹیوشن ہے وہاں کے اوپر یہ دونوں پروسیس جو ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پہلے ایک پروسیس نے مکمل ہونا ہے، پھر دوسرے نے ہونا ہے، اور یہی ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے جس کو پریزیڈنٹ نے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کی بھی الیکشن کمیشن کے موقف کی تائید۔ کہتے ہیں الیکشن کمیشن آئین کے مطابق کام کر رہا ہے۔ صدر مملکت کا خط غلط ہے۔ وہ دراصل اصولی طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت حلقہ بندیاں کروا رہا ہے، انتخابی فرشتوں کو مرتب کر رہا ہے، وہ بھی آئین کی پاسداری کر رہا ہے اور آئین کے مطابق چل رہا ہے۔ صدر مملکت کا خط ہے، وہ الیکشن میں جواب دے دے گا۔ جناب آپ نے ہمارے وفاقی وزیر قانون کا موقف بھی سن لیا، ہم بھی اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، تو آپ الیکشن کی تاریخ دینے کے روادار نہیں، ہم اس خط کو مسترد کرتے ہیں۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے مزید کہا کہ امریکی سفیر سے چیف الیکشن کمشنر کی معمول کی ملاقات تھی۔ دونوں کی ملاقات کا انتخابات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ وزارت قانون کا اعلامیہ
निगरान वफाकी वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत चारों वज़राए कानून का अहम इजलास हुआ। एलामी में कहा कि रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी और हल्का बंदियों की हद बंदी और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इसके इख्तियार का एहतराम करें। मुल्क में इंतखाबात एक साथ और एक ही दिन होने चाहिए। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी और चारों सूबाई वज़राए कानून के इजलास का एलामिया जारी। निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत चारों सूबाई वज़राए कानून के इजलास में मुल्क में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की गई। तमाम वज़राए कानून ने जमहूरियत के असूलों को बरकरार रखने और इंतखाबात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इजलास के एलामिया में कहा गया है, आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए और आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका दफात को अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद और इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाहिद इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत न की जाए। वजारत कानून के एलामिये पर GNN से बात करते हुए माहिर कानून फैसल चौधरी ने कहा कि वजारत कानून आइन की गलत तशरीह कर रहा है। इलेक्शन की तारीख देना सदर का हक नहीं, जिम्मेदारी है। आइन और कानून इस मुल्क में मजाक बन चुका है। तमाम जो वजारत कानून समेत तमाम वजारतें जो है वो आइन की गलत तशरीह में पेश है। ये जो तशरीह की गई है ये बिल्कुल सेल्फ सर्विंग है और इसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं। आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इंतखाबात, जब भी असेंबली तहलील हो, चाहे वो सूबाई हो या कौमी, तो उनके 90 दिन में इंतखाबात कराना जरूरी है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना आइनी तकाजा है, मगर 9 अगस्त को कौमी असेंबली की तहलील के बाद ताहाल इलेक्शन तारीख का ऐलान नहीं किया जा सका, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इंतखाबात कब होंगे। सिर्फ एक जमात को पता है इंतखाबात फरवरी में होंगे। इस जमात को कैसे पता है? बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। एक बार फिर बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हमने कभी आवाम से मुंह नहीं छुपाया, इलेक्शन का इरादा किया है तो तारीख ही बता दें। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं? पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी को जवाबदेह है। इंतखाबात से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या कहे? अगर कोई जिद है या कोई वजह है या कोई मजबूरी है कि इसको आगे भी लेके जाना पड़े तो आगे लेके, फिर मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे। तो वो डेट क्या है? डेट 90 डेज में नहीं है। अगर मेरा CC इजाजत देते और मैं ये मानता भी हूँ तो आप मुझे बताएं कि 95 डेज में, 100 डेज में, 110 डेज में, 120 डेज से 10 साल क्या इरादा है? डेट तो दो। PDM और पीपल्स पार्टी हुकूमत में साथ थे, मिलकर हमने बहुत काम करने की कोशिश किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारतें की जवाबदेह हैं। PDM और PDM के सरबराह जो वजारतें हैं वो जवाबदेह हैं। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। PP से महदूद सतह की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, तहम उसके भी इम्कानात बहुत कम है। इंतखाबात के बाद इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद उन्हें सूट करती है जिसका उन्हें हक है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, उसे सियासत का हक मिलना चाहिए, मगर PTI के लोग 9 मई के जिम्मेदारों से खुद को अलग करें। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी कहती है कि सदर ने इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से अपना दस्तूरी फरीज़ा सर अंजाम दिया। सदर ने मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया। अब पूरी कौम की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के एलामिये में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट दस्तूर के हवाले से अपना आइनी किरदार निभाए, इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर तक इंतखाब के इनेकाद का पाबंद बनाए। सदर मुमलिकत के इकदाम के बाद कौम में उम्मीद जागी है कि आवाम की मुंतखब हुकूमत हल्फ लेगी, मुल्क को गंभीर सियासी और माशी मसाइल से निकालने की तदबीर करेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के नाम अहम एजाज। तुर्किया ने आर्मी चीफ को लीजन ऑफ मेरिट के एजाज से नवाज दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के दौरे तुर्किया के मौके पर तुर्क हुकाम से अहम मुलाकातें हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया।
आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जमहूरिया तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान, वज़राए खारजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और तुर्किया की बर्री और फजाई अफवाज के कमांडरों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा और तुर्किया की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के मयार की तारीफ की। तुर्क रहनुमाओं ने रवा साल फरवरी में तुर्किया में आने वाले ज़ल्ज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशावराना खिदमात का भी एतराफ किया। आर्मी चीफ ने अंकारा में तुर्किया के अजीम रहनुमा मुस्तफा कमाल अता तुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ की तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने के लिए उनकी पेशावराना खिदमात के एतराफ में लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत और बिरादराना हैं, जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की बर्री अफवाज को मुतअद्दिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन मिला जुला रुझान रहा। मार्केट के अख्ताम पर इंडेक्स में 82 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.07 सस्ता, जबकि ओपन मार्केट में ₹1 महंगा होने के बाद ₹301 का हो गया। राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन मिला जुला रुझान रहा। मार्केट के अख्तिताम पर इंडेक्स में 82 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 45,590 की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 297 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिसमें 122 के शेयर्स में इजाफा जबकि 133 में कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की गिरावट का सिलसिला जारी। कारोबार के अख्तिताम पर मजीद ₹1.07 सस्ता होने से डॉलर $299.89 से कम होकर $298.82 पर पहुंचकर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर मलिक बोइस्तान कहते हैं क्रैकडाउन का फायदा हो रहा है, डॉलर के साथ दीगर चीजों की कीमतों में भी कमी होगी और डॉलर के रेट मुसलसल कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह 290 के बाद 280 फिर 270 250 तक भी जा सकता है। ये इसी तरह परमानेंट बेस पे जो है ये अगर ऑपरेशन जारी रहता है और सरहदें में स्मगलिंग बंद रहती है। इधर ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर ₹1 महंगा हो गया, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज ₹300 पर बंद होने वाला डॉलर ओपन मार्केट में ₹301 का हो गया। राशिद खान, GNN, कराची। मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल के हवाले से SSP ईस्ट इरफान बहादुर का ये कहना है कि हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। CCTV फुटेज, सबूत और गवाहों की तफ्तीश से भी लवाहिकीन और इंतजामिया को आगाह कर दिया। जल्द मजीद पेशरफ्त सामने आएगी। देखें, बिल्कुल इंतहाई दिलखराश वाक़या कल रोनमा हुआ है, जिसमें पुलिस अपने हर पहलू से जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबूतों को, गवाहों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें CCTV फुटेजेस को भी इकट्ठा किया जा रहा है। वहाँ से हमने जो सेल टावर्स का डाटा है वो भी हमने उठा लिया है। तो पुलिस अपने तरतीब बाई तरतीब जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। आज मेरा जो यहाँ पे विजिट था वो इंतज़ामिया को और यहाँ पे जो उनके लवाहिकीन हैं उनको इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस से आगाह करना और उनको एतमाद में लेना ही था।